कैसा एक्सपीरियंस था शोभरा से? Among all, you have met a lot of criminals, high profile से लेके normal common inmates under trials like you mentioned. नहीं, शोभराज का ये था कि एक तो बहुत इंटेलिजेंट प्रिजनर था वो, और वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो आपकी साइकोलॉजी पढ़ लेता था और वो आपसे आगे चलता था। उसको पता होता था कि मैं इनको अब ये बोलूँगा और ये उस पर ये जवाब देंगे, उससे अगला जवाब वो सोच के तैयार करके रखता था। 10 कदम आगे सोचता 10 कदम आगे सोचता जी। था। तो फोन लेकिन आते थे तिहाड़ में? फोन बड़े आते, मजाक की बात है कि उसमें जैसे फोन आते थे तो हम कहते थे आपने किसको मिल रहे हैं, वो कहते आप कहाँ से बोल रहे हैं, जैसे आजकल भी ऐसे होते हैं कहाँ से बोल रहे हैं। हम जब कहते थे कि हम तिहाड़ से बोल रहे हैं, खासकर किसी अगर फेयर सेक्स का फ़ोन है, तो वो सोचते थे कि हम उनको छेड़ने के लिए कह रहे हैं कि हम तिहाड़ से बोल रहे हैं। वो कहते आप तिहाड़ में रहो, आप तिहाड़ में रहो, भगवान करे आपकी ज़िंदगी यहीं बीते, इस तरीके की बातें करते थे। जहान कपूर ने आपका रोल प्ले किया है सर, उसमें जैसे कैरेक्टर दिखाया गया है जहान कपूर का, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टेड ऑफ कैसे उनको ऐसे इंटिमिडेट हो जाते थे वो, किस हद तक उन जहान कपूर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो पोर्ट्रेयल किस हद तक सही आपको लगता है? देखें, इसमें मेन तो इन्होंने जो इंस्पायर हुई है, जो सीरीज़ है वो किताब से ही हुई है जी। तो किताब से हुई है, किताब में जो लिखा हुआ है उन्होंने वो चीज़ तो ली है, उसके बाद उन्होंने और रिसर्च की है, और चीज़ें कई उसमें डाली हैं। तो अगर इसको दूं तो 90% जो है इन्होंने पोर्ट्रेयल फैक्ट्स का किया हुआ है। Hello and welcome to The Print. My name is Bismi Taskin, principal correspondent at The Print, covering crime and national security in New Delhi. With me today we have Mr. Sunil Gupta, former law officer of Tihar. Welcome to The Print, sir. Thank you. Thanks for inviting me. Right, sir. Mr. Gupta had co-authored a book with journalist Sunitra Chaudhary, which was published back in 2019 called The Black Warrant. Now, when the book was published, it ruffled many feathers and a lot of good feedback came across because it was one of a kind, a book that was full of first account by Mr. Sunil Gupta, who has worked as a jailer, a jail superintendent in Tihar, which is one of the world's largest prison complexes. Now, this book has been adapted into a series on Netflix. Jahan Kapoor plays the role for Sunil Gupta. Sir, your book has come out as a series and it has got brilliant feedback. First of all, congratulations for that, sir. Thank you. So, what do you have to say about the similarities and the differences that should be striking our mind as viewers? And also, if you could tell us a little bit about what sort of things that you did not explore in the book, but you chose to open up in the series. Yeah, there are so many things. Basically, when I started writing the book, so there were so many things in my mind. Basically, you see that prisons are you can say, laboratory of the criminal justice system in the city or in the state, you can say. So, a number of application we are receiving from the law scholars or doing the higher study in various fields, who want to know what was the criminal psychology, what is the criminal psychology when they are lodged in the prison, and what are the side effects of everything. So I thought that I should write something which may help the students and which may help the public at large, whosoever want to study the prisons. So there were so many things in my mind which I included in the books, and there are so many things which have been left out, not intentionally but inadvertently left out, which I am trying to have another book, and I will include those things in that next book. सर, आपने लगभग 35 साल काटे हैं तिहाड़ में. You have offered so many services in Tihar. So many reforms have taken place under you, with you. सर, आज के तिहाड़ में, और अगर हम बस सीरीज की बात करें 1980 to 1984 आपके टेन्योर के बहुत इनिशियल ईयर्स में, क्या चेंजेस आए तिहाड़ में? गैंग्स अभी भी तिहाड़ में हैं, गैंग वॉर्स अभी भी होता है, बट रिफॉर्म्स कैसे लाए गए? व्हाट वाज द प्रोसेस? क्या हर्डल्स आए उन रिफॉर्म्स को लाने के लिए? देखिए, क्या है, पहली बात तो ये है, रिफॉर्म्स क्या हैं.
रिफॉर्म्स मीन्स कि you wish to change the psychology of a prisoner from negativity to positivity. एक आदमी क्राइम क्यों करता है? क्योंकि उसके लिए जो समाज है उसके लिए नेगेटिव अप्रोच होती है। वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है और उनको नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा करना चाहता है। अगर आपने उसकी वो साइकी को चेंज कर दिया, आप उस साइकी को कैसे चेंज करेंगे? या तो आप उसको काम सिखा के, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि मैं मेहनत करके अपना रोटी कमा सकता हूँ, या उसके दिमाग में शांति ला के आपने उसको योगा सिखा दी, मेडिटेशन सिखा दी। क्योंकि देखो, जो हेल्दी बंदा होता है, हेल्दी बंदे में हमेशा हेल्दी विचार ही उसके दिमाग में आएंगे। जी जितना नेगेटिव बंदा होता है उतना वो अनहेल्दी होता है, मेंटली हो या फिजिकली हो। फिजिकली अनहेल्दी होगा तो उसको नेगेटिव विचार ही उसके उसमें आएंगे, जिससे कि सब चीज़ जो क्रिमिनल एनवायरनमेंट जो है ये बनता है। तो रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि अगर आप प्रिजनर को जो भी ट्रीटमेंट आप उसको जेल में दे रहे हैं, दैट यू आर एक्सटेंडिंग हिम एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जेल मैनुअल, and you are treating him humanly with compassionate। और आप प्रिजनर को कोई आप काम धंधा सिखा रहे हो, तो ये सब चीज़ें अगर जेल में अगर आप करते हो तो ये रिफॉर्मेशन होता है। और जो जेल में रिफॉर्म है, आप देखें क्या है कि जेल में जैसे रिफॉर्म है, ये हमारे यहाँ दिल्ली की अगर हम बात करें जी तो दिल्ली में करीब करीब 76 प्रिजनर जो है, 77 इंडिया का तो 76% प्रिजनर जो है दे आर अंडर ट्रायल। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 82% प्रिजनर जो है दे आर अंडर ट्रायल एंड 18% आर कन्विक्ट। बेसिकली रिफॉर्म्स आर डन, reforms are meant for the convicts, because if somebody is staying in the jail say for the year, 2 year or 3 year, reforms are meant for are targeting the convicted person, so that he may learn some vocation. Because you can, under the law, you can take work only from the convicted prisoner, not from the under trials, unless they are willing। तो इसमें जो जब आप आपका रिफॉर्मेटिव जब आपका सेटअप होता है, आप रिफॉर्म की सोचते हैं, तो उससे आप भी जो है टेंशन फ्री रहते हैं, और प्रिजनर भी में भी आप प्रिजन में भी आप टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं। जी सर। सर, कमिंग बैक टू द सीरीज, जहान कपूर ने आपका रोल प्ले किया है सर, उसमें जैसे कैरेक्टर दिखाया गया है जहान कपूर का, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टेड ऑफ कैसे उनको ऐसे इंटिमिडेट हो जाते थे वो, कितना किस हद तक उन जहान कपूर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो पोर्ट्रेयल किस हद तक सही आपको लगता है? देखें, इसमें मेन तो इन्होंने जो इंस्पायर हुई है, जो सीरीज है वो किताब से ही हुई है। जी तो किताब से हुई है, किताब में जो जो लिखा हुआ है उन्होंने वो चीज़ तो ली है, उसके बाद उन्होंने और रिसर्च की है, और चीज़ें कई उसमें डाली हैं। तो अगर इसको दूं तो 90% जो है इन्होंने पोर्ट्रेयल फैक्ट्स का किया हुआ है। जी, काफी चीजें उन्होंने दिखाई भी है सर, रंगा बिल्ला दिखाया है, उनका हैंगिंग दिखाया, जो आपने बहुत अच्छे से किताब में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, हैंगिंग के दौरान क्या हुआ था, और काफी और चीजें। बिल्कुल। सर, जब सीरीज के बारे में बातचीत चल रही थी, तो डिड यू गो बैक टू तिहाड़ अगेन, लाइक सीरीज के लिए, या आपने कितना टाइम बिताया है मतलब उनके साथ, प्रोडक्शन टीम के साथ, इसके बारे में, वेयर यू थ्रू द शूट? Now, basically, this shoot was done at Bhopal jail. जी Plus, there was a special set for the jail this Jodi at Bombay. They have constructed a Jodi in the studio at Bombay. तो जब शूट हो रहा था तब तो मैं नहीं गया था। बाकी हाँ, जो उन्होंने जो स्टूडियो में जो उसका एक जेल का एक स्ट्रक्चर बनाया था वो मैंने देखा था। जी वो बिल्कुल जैसे तिहाड़ जेल का आगे से स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसा था। और बाकी वो मेरे से, उनकी रिसर्च टीम है, टाइम टू टाइम मेरे से पूछती रहती थी,
और मैं उनको जो भी वो पूछते उनकी क्वेरी होती थी हम्म। उसका मैं जवाब देता रहता था। सर सीडीज के शुरुआत में दे इंट्रोड्यूस चार्ल्स सोबराज, ठीक है, उसके बाद घटनाएं घटती गई, शोभराज आते गए, सीरीज में दिखाए गए हैं काफी बार, एंड में मतलब इस एटलीस्ट होपफुली देयर विल बी अ नेक्स्ट सीजन लाइक मेनी ऑफ अस आर होपिंग, क्योंकि लास्ट में तो सरेंडर कर दिया है कि मिठाई खा लिया। मिठाई, पहले हाँ। दिखाया था कि आपसे उन्होंने बोला था कि मिठाई फेवर है। चाहिए मुझे बर्थडे हाँ। के लिए, क्या खुश करेंगे, हम्म। आप उनको हर बार बोलते थे थैंक यू, बिकॉज उन्होंने एक बार आपको ठोक दिया था। हाँ। जी सर, कैसा एक्सपीरियंस था सोबरा से? अमंग ऑल यू हैव मेट अ लॉट ऑफ क्रिमिनल्स, हाई प्रोफाइल से लेके नॉर्मल कॉमन इनमेट्स अंडर ट्रायल्स लाइक यू मेंशन्ड। नहीं, शोभराज का ये था कि एक तो बहुत इंटेलिजेंट प्रिजनर था वो, और वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो आपकी साइकोलॉजी पढ़ लेता था और वो आपसे आगे चलता था। उसको पता होता था कि मैं इनको अब ये बोलूँगा और ये उस पे ये जवाब देंगे, उससे अगला जवाब वो सोच के तैयार करके रखता था 10 कदम आगे 10 सोचता कदम था। आगे सोचता जी। था। तो चार्ल्स सोबराज का क्या था कि जब मैंने जेल सर्विसेज ज्वाइन की, हाँ। उसमें मैंने बताया उसका भी रोल था। उसने क्योंकि क्या है कि जेल में प्रिजनर्स मतलब प्रिजनर्स जो है इतना काम करते हैं कि बिना प्रिजनर्स की हेल्प के हम जेल नहीं चला सकते, जी। मुश्किल हो जाएगा चलाना। तो हमारा क्या होता था कि जैसे मैं लीगल एड का काम मुझे दिया, मैंने लीगल एड का खोला, तो चार्ल्स सोबराज ने अपनी सर्विसेज दी क्योंकि ये कन्विक्ट था। इसने कहा कि मैं जो भी पेटिशन वगैरह बनाने का काम है वो मैं कर सकता हूँ, तो आई हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट। उसके बाद दो लोग और थे जिन्होंने कहा कि हम टाइपिंग का काम कर देंगे, किसी ने कहा कि हमें कमेंट्स बनाने बड़े अच्छे आते हैं, तो हमने उनको ले लिया। तो आपको हैरानी होगी जान के कि जब मैंने काम शुरू किया था तो हमारे यहाँ पेड टाइपिस्ट वगैरह नहीं होते थे। जी। ये प्रिजनर ही जो है टाइपिंग का काम जी, करते जी, थे, जी। जिससे कि हमारी लीगल एड जो है, हमारा लीगल डिपार्टमेंट जो है चलता था। तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की, और चार्ल्स सोबराज को मैं इसलिए भी जानता था कि ये कई गरीब लोगों की पेटिशनें बनाता था, अमीरों की बनाता था, ये नहीं कि दूसरों की नहीं बनाता, दूसरों की बनाता था, पर उनसे शायद हमें पता लगता था कि ये पैसे पूसे लेता है, पर गरीबों की ये पेटिशनें बनाता था, और काफ़ी इफ़ेक्टिव होती थी वो पेटिशनें जो बनाता था। आपको और भी जान के ताज्जुब होगा कि जब मैंने लीगल एड सेल, एक फॉर्मल लीगल एड सेल खोली जिसमें कि एडवोकेट बाहर से आते थे जी। लीगल सर्विसेज देने के लिए, प्रिजनर्स जो है उनको जो सरकारी वकील आते थे उनके ऊपर विश्वास नहीं होता था। उनको जो हमारे प्रिजनर हैं जैसे चार्ल्स सोबराज है, सुनील बत्रा है, या ऐसे दो चार और प्रिजनर होते थे, उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास होता था, और वो इन्हीं से पेटिशनें बनवाते थे। उनको ये पता होता था कि अगर ये पेटिशन बनाएंगे तो इसका रिजल्ट निकलेगा। जी, भरोसा इतना ज़्यादा रहता भरोसा था। इतना ज़्यादा रहता उनके था। साथ रहते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा हाँ, भरोसा उनके होता ऊपर था। ज़्यादा भरोसा होता है, और उनको टेक्स्ट पता होते थे कि कोर्ट को हम क्या लिखेंगे हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने तो कई उसमें क्योंकि उन दिनों में ना सीधा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगती थी। जी। आज की डेट में तो कोई सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता, पहले हाई कोर्ट लगाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट जी। जाएगा। उन दिनों में जरा सी कोई पिटीशन हो, जरा किसी प्रिजनर को कुछ इनकन्वीनियंस होती थी, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाते थे, क्योंकि वो ऐसा दौर था 81-82 में जी। कि उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन अगर कोई कागज, एक खाली कागज पे छोटी सी अगर टुकड़े, कागज के टुकड़े पे कोई अपनी वो हमें पिटीशन भेजता है तो उसको भी हम एज ए रिट पिटीशन जो है ट्रीट कर लेंगे। तो उस टाइम पे ये ऐसा युग था। तो उस टाइम पे ये पिटीशनें बनाते थे, इनको पता होता था इस जज के आगे इस तरीके से लगाएंगे तो ये रिलीफ मिलेगी, या हाई कोर्ट के इस जज के आगे इस तरीके से लगाएंगे तो ये रिलीफ मिलेगी। इसलिए प्रिजनर्स को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता था बानिस्बत कि जो लीगल एड के एडवोकेट होते थे। सर सोबराज वाज वेरी फैसिनेटिंग। लुक, आप फैसिनेट हुए थे उनसे जब पहली बार मिले थे? लास्ट का नहीं, बातचीत सोबराज आपकी। सोबराज फैसिनेटिंग था। उसको मैंने आपको जस्ट बताया कि वो काफ़ी आगे, मतलब एक जो हमारी एक आम साइको, हम तो आम साइकोलॉजी के आदमी थे, वो हमारे से आगे सोचता था। तो और वो इसलिए मतलब प्रिजनर भी उसको जो है काफ़ी वो करते थे, लाइक मानते करते थे। थे, क्योंकि वो उनको पिटीशनें बना के उनको रिलीफ दिलवा देता था।
वो वैसे भी जो है अगर किसी ऑफिसर से कोई काम करवाना है, अगर प्रिजनर उसको बताते थे तो वो जल्दी करवा देता था, क्योंकि उसका कहते थे कि उसने कुछ एक ऑफिसर्स का जो है कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया हुआ है, ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करता था। जी तो जी। इसी वजह से वो काम बड़ी वो जो है बड़ा इफेक्टिव मोड था काम करवाने का, बानिस्बत की एक प्रॉपर चैनल से चले ब्लैकमेल कर लो आप थे। उनको। सर आपकी किताब आने के बाद आपने उनसे बात की थी, अभी बात हुई है आपकी इनसे नहीं, सीरीज उसी के मेरी बाद? जब किताब आई है तो मुझे किसी प्रेस वाले का फ़ोन आया, कोई हम्म, जैपनी प्रेस वाले थे। उन्होंने कहा कि चार्ल्स सोबराज आपका नंबर मांग रहे हैं, हम्म। तो मैं दे दूं? अच्छा, उनके पास नंबर नहीं था? उनका नंबर नहीं था, जी। तो मैंने उनको कहा दे दो। हाँ। तो उन्होंने दे दिया। फिर इनका मैसेज आया, इन्होंने अपना जिस होटल में ये ठहरे हुए थे हम्म, उसका बताया, और फिर इन्होंने काफ़ी तारीफ मेरी करी कि यू आर जेन्युइन इवन एट दैट टाइम, इवन नाउ यू आर जेन्युइन, आप मैंने आपकी किताब पढ़ी है, हम्म। तो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखी है। तो ही वॉज अप्रिशिएटिंग, तो वो मेरे पास अभी भी है, लिखा हुआ भी जी। है। ओह नाइस। सर एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे, ये सीरीज में हमने देखा है तिहाड़ में बहुत फोन आते थे रॉन्ग नंबर लैंडलाइन से, ये सही था? आप लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी लेते थे क्या, नाइट ड्यूटी फोन ले? देखिए क्या होता था कि जैसे किसी का और फोन एक आया। बात मैं पूछना चाहती हूँ, हाँ। सीरीज में दिखाया गया था आप वेजिटेरियन थे, फिर आप एक दिन नॉन वेजिटेरियन बन गए, क्या ये हम्म। बात भी सही है? हाँ, देखिए जैसे मैं जब मैंने जेल में एंटर किया था, तो उन दिनों में जैसे वर्ड एक एक उसमें करेक्टर है जो कह रहा है धाकड़ बनो धाकड़। जी जी जी। तो ऐसे हमारे ऑफिसर थे। जी। तो मेरे लिए तो एक ये टैबू होता था कि लिकर पीना या कुछ किसी लड़की से बात करना, ये। हम्म तो वो मुझे कहते थे, जब भी उनकी कोई मीटिंग, उनका कोई, हमारी शाम को हम घर बैठते थे तो उनका होता था ये शराब वगैरह, नॉनवेज, हम्म। नॉर्मल बात। मैं खाता नहीं था, तो मैं इसलिए उस उनमें जाता ही नहीं था कोई उनकी गैदरिंग में। हाँ। तो फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्हीं की संगत में, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ, जो जेल की काफ़ी टफ हमारी उस टाइम पे लाइफ होती थी। हम्म आजकल तो इन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी कर दी, उस टाइम पे होता था सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप जो है जेल खाने में हो। जेल खाना बंद हुआ रात के 10 बजे। जी। उसके बाद आप जो है उस पे अपना खाना वगैरह खा सकते हो। तो जब वो खाना खाते थे तो एंजॉय करते थे, तो मैं नहीं करता था। धीरे धीरे जो है, मैंने कहा शायद इनकी बात करके सीखते हैं। हम्म। तो धीरे धीरे करके मैंने नॉनवेज वगैरह लेना जो है शुरू कर दिया था, और कभी कभी जो है ड्रिंक भी कर लेता था, पर मैंने ज़्यादा कभी भी मैं एडिक्ट नहीं हुआ इस चीज़ का। ऐसे माहौल में घुलने मिलने के लिए आपने हाँ, कोशिश की घुलने थी? मिलने के लिए, क्योंकि मैं अकेला बैठा रहता था तो वो भी बड़ा अजीब सा लगता था कि आप अकेले बैठे हो। और दूसरा बात ये है कि अगर आप उसमें अकेले बैठे हो तो आपको कभी भी वो अपना सगा समझते नहीं थे। अगर 5 आदमी हैं वो खा पी रहे हैं और आप अलग बैठे हो, तो वो मेरे को कभी भी अपना सगा नहीं समझते। हिस्सेदार तो नहीं मानेंगे आपको? हाँ, वो मुझे अलग अलग वो मानते थे। तो फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके वो इसे लेना शुरू करो। फिर मैंने पढ़ा भी था इसमें कि मैंने मैंने ये सोचा कि देखो ये तो हमारे उसमें नहीं लेते, बाकी पूरा वर्ल्ड लेता है, तो ये अपने आप को कन्विंस करवाने के लिए जो होता है। अग्री हाँ, कर लिया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दिया था। सो फोन लेकिन आते थे तिहाड़ में? फ़ोन बड़े आते, मज़ाक की बात है कि हाँ उसमें जैसे ही फ़ोन आते थे, हाँ तो हम कहते थे आपने किसको मिलना है? वो कहते हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? जैसे हाँ आजकल भी ऐसे होता है, कहाँ से बोल रहे हैं? हम जब कहते थे कि हम तिहाड़ से बोल रहे हैं, हाँ ख़ासकर किसी अगर फेयर सेक्स का फ़ोन है, हाँ। तो वो सोचते थे कि हम उनको छेड़ने के लिए कह रहे हैं कि हम तिहाड़ से बोल रहे हैं। वो कहते हैं आप तिहाड़ में रहो, आप तिहाड़ में रहो, भगवान करे आपकी ज़िंदगी यहीं बीते। इस तरीके की बातें करते थे। जी बाकी वैसे ही फ़ोन आते थे। जी जी हुँ। जी। उस टाइम पे लैंडलाइन भी आना शुरू हो गया था, लोग ऐसे भी फोन करते थे। लैंडलाइन ही होता था हमारे, मुझे हाँ याद है कि जेल में हाँ खाली एक ही लैंडलाइन फ़ोन होता था, हाँ। उसी पे सारे फ़ोन आते थे। जी हाँ। जी। सर आखिरी सवाल आपके लिए। सर व्हाई डिड यू राइट द बुक? क्या ऐसा थॉट आया था आपका, एंड डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, कुछ भी जरा सा भी रिग्रेट है आपका फ्रॉम योर दिस टेन्योर इन तिहाड़ वर्किंग फॉर ओवर 3 डेकेड्स? देखिए जो बुक लिखी, हम्म मेन तो मेरा ये था उसमें टू टेल द पब्लिक दैट व्हाट इज़ द क्रिमिनल साइकोलॉजी, हम्म हाउ दे बीट द सिस्टम, हम्म प्लस when one is on the death row, what is their psychology. So there were so many things which I want to the public to know कि in what way the jails are functioning.
particularly Tihar jails are functioning. And I was also I did initiated certain things in the jails like free legal aid cell. Right. That was initiated by me. This was unheard of before that. Ki there could be legal aid cell in the jail, but I started this, and now this has become constitutional right. The government has even amended the constitution Yes. to insert the article that this is the fundamental right. Then I started, I along with, of course, my director general, they were with me. We started this video conferencing facility in the jail. Then we started this, you can say, open jail, semi-open jail for the prisoner. Also, we framed the parole furlough rules for the prisoners, which were much liberal compared to the applicable to the prisoner of other states. जी. So हमने जब ये सारे रूल्स वगैरह बनाए, तो एक तो मैं ये बताना चाहता था पब्लिक को कि जेल एक क्लोज इंस्टीट्यूशन है, उसमें कैसे वर्क करती है, क्या प्रिजनर्स की साइकोलॉजी होती है, उसके अलावा क्या क्या इनिशिएटिव हमने लिए हैं, खासकर मैंने लिए क्योंकि ऐसे तो बताने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है जी. और एक था जो लास्ट जो मेरा टेन्योर था, बेसिकली आई वाज आल्सो द प्रेस ऑफिसर ऑफ द जेल. Yes. So I stayed there for 20 years, 20 long. I started this press officer in 1996, and till my retirement, I was there. So what I found that in year 2014, we used to hold the annual press conference where all the journalists, reporter from various newspaper and magazines were invited. That was a type of open and this session where DG Prison was replying to the question of reporters. This was, we were conducting this very successfully, and this was going on for the last, you can say, 15, 16 years. But suddenly, in 2014, my DG told me that, don't do this. I say, ki, this is a good thing. We should have openness in our working. But he said, no. I am saying, don't do this. I started that. I stopped this there, and thereafter he also directed me that don't give any press release to the public until that is approved by me. That is good enough, because earlier also whenever I was issuing the press release, you'd get it approved. I was getting the approved. And thereafter, suddenly, during the last, you can say, last week of my retirement, I was issued a charge sheet by the government of Delhi, in which it was mentioned that for my some conduct which happened in 2010, 2009 or 2010, I have committed some financial irregularities. Financial irregularity not means ki financial fraud. Financial irregularity means like if I have purchased some computer, I was required to take permission from the Delhi government IT department. But since that one happened, they issued me charge sheet. And ultimately, that charge sheet was withdrawn by the government because there was nothing of substance in that. Because I never purchased the things. The things are purchased by on the direction of the Director General Prison, and he is the responsible for everything. Right. So when I conveyed this in my reply to them, then this charge sheet was withdrawn. So I was having a type of this repellence. Why they have issued me charge sheet. So that may be another reason to write the book. Right, sir. Thank you so much for joining us, sir. Thank you. For The Print, this is Bismi Taskin. Do log on to our website and follow us on our social media handles. And also, do not forget to watch Black Warrant. And if you are a reader, do read Mr. Sunil Gupta and Sunitra Chaudhary's book, The Black Warrant. Thank you.